We are in the 11th month of this year. और हम 11वें महीने में हैं इस साल के, We are at the close of this beautiful year 2025. और 2025 के अंत में हम लोग हैं, And this next 2 months is going to go very fast. और अगला जो 2 महीना है वो काफी जल्द से जल्द गुजर जाएगा। Are you all ready for it? क्या आप सब तैयार है उसके लिए? Yes, especially there's a Christmas event that is coming up at our church. और एक क्रिसमस का त्योहार आ रहा है जो हम लोग मनाने वाले हैं साथ में, Please mark the date. It's going to be on December 21st, Sunday evening. और 21 दिसंबर की शाम को हम लोग इसको साथ में मनाएंगे। How many were there last year's program? और पिछले वर्ष के कार्यक्रम में कितने लोग थे? Do you all know how many people turned up? और आप सबको पता है कि कितने लोग वहाँ पे आए थे? There were 500 to 600 people. 500 से 600 लोग करीब वहाँ जमा हुए थे। To be very honest, we were not prepared to see such people, such number. और आपको सच बताए तो हम लोग तैयार नहीं थे कि हमको पता नहीं था इतने सारे लोग आएंगे। We really believed God multiplied the food. और हमको सही में वहाँ पे भरोसा हमने किया और प्रभु ने वो खाने को वहाँ पे दुगना किया, That none lacked the food. और किसी को भी भोजन की कमी वहाँ नहीं हुई। How many want to see many more coming this year? और आप में से कितने लोग चाहते हैं कि और भी अधिक लोग आए इस वर्ष? This is one such opportunity or occasion during the year where we get to share the gospel of Jesus Christ. और वर्ष में हमको एक ही मौका मिलता है जहाँ हम प्रभु के सुसमाचार को लोगों के साथ घोषित कर सकते हैं। It's not that we don't get other opportunities. Yes, we all can keep sharing, personally witnessing to people. We don't have to wait for Christmas to do that. और हमको और भी मौके साल भर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि केवल हमको क्रिसमस की राह देखनी है जब हमको सुसमाचार प्रचार करना है। But as a church, it's a wonderful event to have to sow the seeds of the gospel into the hearts of many unbelievers who otherwise would never step into a church. एक कलीसिया के नाते ही हमको एक सुनहरा मौका मिलता है कि हम सुसमाचार का बीज दूसरे अन्य जातियों के बीच में हम बो सके। I want to encourage you all to get excited about it. और मैं चाहता हूँ कि आप सब उत्साहित हो जाएं इसके लिए। Involve, participate, volunteer in whatever we can. Give yourself into that event. और इसमें आप सहभागी हो, संपर्क करें और हमारा सहयोग करें जिस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। Most importantly, plan to get your acquaintances, your contacts, to come and hear the gospel on that day in a very entertaining context. और सबसे महत्व की चीज है कि आप योजना बने कि आप अपने मित्रगणों को कैसे वहां पे बुला सकते हैं और उनको आप आमंत्रित कर सकते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's take a moment to bow our heads and close our eyes and look to the Lord in prayer. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपना लक्ष्य हम प्रभु की ओर लगाएं। Still our spirits, calm our minds, open our hearts to say, God, I'm here that I may. Please speak to me. और अपने आत्मा और मन को हम शांत करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, आप मुझसे बात कीजिए। Dear God, we want to thank you for your very presence in this place. प्रिय प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए इस सभा में। We honor you in this place, Lord. हम आपको गौरव और महिमा देते हैं इस सभा के लिए। We thank you that you have loved us and you have drawn us towards you with cords of compassion. और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमसे प्रेम किया और आपने हमें अपनी ओर खींच के लेके आए आपके अनुग्रह से। That is the very reason why we are seated here this evening in this place. और यही कारण है कि शाम के समय हम यहाँ पे बैठे हैं। As we look to your living word, speak to us. और जैसे हम आपके जीवित वचन को देखते हैं, आप हमसे बात कीजिए। We believe that there is power in your word. हम विश्वास करते हैं कि आपके वचन में सामर्थ है। So different from the words of the people in this world. और ये जो संसार के लोग जो वचन बोलते हैं उससे काफी विभिन्न है। Your word brings life. और आपका जो वचन है वो जीवन को लेके आता है। Your word brings comfort. और आपका जो वचन है वो हमको कंफर्ट देता है। Your word brings direction. और आपका जो वचन है वो हमको दिशा दिखाता है। Your word brings course of correction in the area of our lives. और हमारे जीवन में जहाँ भी कोई चीज गलत है वहाँ पे हमको सुधारता है। God, we submit to the authority of your word. और आपका जो वचन है उसके अधिकार के नीचे हम आते हैं। Blessed Holy Spirit, I invite you to take complete control over this time. और धन्यवादित पवित्र आत्मा, हम आपको आमंत्रित करते हैं कि इस समय को आप अपने नियंत्रण में लीजिए। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Can you all give one more round of applause to Jesus? As I told you, we are at the end of this year. और जैसे मैंने कहा कि हम इस वर्ष के अंत में आ चुके हैं। Soon we'll be entering the Christmas season. और उसके बाद में हम लोग क्रिसमस के सीजन में हम लोग जाएंगे। Even if you have not thought about it, hope this will bring that thoughts about it. और अगर आपने सोचा नहीं होगा क्रिसमस के बारे में तो आप अब सोचना चालू कर सकते हैं I इसके बाद। thought I'll begin a new series about knowing who Jesus is. और मैं एक नई श्रृंखला आपके लिए लेके आया हूँ कि
हम जाने कि यीशु मसीह कौन है in his own words. और उसके स्वयं के शब्दों के हिसाब से। Many people who had their own opinions about Jesus. और कई लोग हैं जिन्होंने अपना विचार प्रभु यीशु मसीह के बारे में On दोहराया है। occasion, Jesus asked his people, "Who do you think people say about me?" और एक मौके पे यीशु मसीह ने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं। He also asked them, "Who do you think that I am?" और उसने शिष्यों से पूछा कि तुम क्या समझते हो कि मैं कौन हूँ। How about knowing Jesus from whom he said he was? और ये कितना अद्भुत है कि हम प्रभु यीशु मसीह से जाने कि जो उसने कहा कि मैं क्या हूँ। Let me ask you a question. और मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, Do you think anywhere in the Bible Jesus ever said, "I am God"? और कई बाइबल में इस प्रकार से कई लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं परमेश्वर हूँ या मैं प्रभु हूँ। Did Jesus anywhere in the scriptures said, "I am God"? क्या यीशु ने इस प्रकार से कहीं कहा कि मैं प्रभु हूँ? Yes or no? हाँ या ना? How many of you say yes? आप में से कितने लोग कहते हैं कि हाँ? Rest of you saying no. बाकी सब लोग कह How रहे many हैं of you believe that Jesus is God? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है? If he himself did not claim that he said he's God, then how do you believe him to be as God? अगर उसने स्वयं होके नहीं कहा कि मैं प्रभु हूँ, तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है? Keep thinking about it. आप सोचते रहिए उसके What बारे is में। the pursuit of your life, if I may ask you? अगर आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, अगर मैं पूछूं आपसे, तो What is the goal of your life? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? What is the aim of your life? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? I hope you all have some goals in your life. आपके जीवन के लिए कुछ ना कुछ आपका उद्देश्य If you do होगा। not have, I will sincerely pray that you'll get some goals. अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपको मार्गदर्शन करे। As you're seated here, bring it to your mind. What are you running after? आप जब यहाँ पे बैठे हैं तो आप जरा सोचिए कि आप किसके पीछे दौड़ रहे What are हैं you working hard after? और किस चीज को आप हासिल करने के लिए What are you कार्य कर रहे हैं। striving after? आप क्या चीज पाना चाहते हैं। I want you to imagine for a moment that you got what you wanted. और सोचिए जरा सा कि आप जो चाहते हैं आपको वो चीज मिल गई है। You achieved your goal. आपको जो लक्ष्य करना था वो You आपको hit मिल your गया aim. और आपको जो दिशा पे जाना था आप वहां I पहुंच still गए। want to ask you, what did you achieve by achieving what you wanted to achieve? और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो चीज आप हासिल करना चाहते थे अगर आपको मिल गई है तो वो हासिल करके आपने क्या किया। Many people have like to achieve so many things कई लोग काफी सारी चीजें हासिल करना चाहते हैं so that they can declare how smart I am, how capable I am, ताकि वो घोषित कर सके कि मैं कितना महान हूँ, कितना अच्छा मैं हूँ, to make themselves feel good. I've done something great. और स्वयं को वो अच्छा कहने के लिए कि मैंने कुछ अच्छा महान Every कार्य किया human है। person born to this world have an intrinsic feeling that they need to be feel important and significant. Nothing wrong in it. और हर एक व्यक्ति जो इस धरती पे पैदा हुआ है उसकी ये इच्छा होती है कि उसको कोई महत्व मिले। But the question is, do you get that by achieving something what you're after? लेकिन प्रश्न ये है कि जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं, अगर आपने उसको हासिल किया, उसके मिलने के बाद क्या आप वो महसूस करते हैं? Have you ever met highly accomplished people in your life? क्या आपने ऐसे कोई महान व्यक्तियों को जिन्होंने अच्छी चीजें अपने जीवन में हासिल की उनसे If मिले हो? you have, please try asking them, how do you feel after achieving all that you wanted to achieve in your life? और आप उनसे ये प्रश्न पूछिए कि जो भी चीज आप आपके जीवन में हासिल करना चाहते थे, जब आपने उसको पा लिया तो आपको कैसा लग रहा है? You'll still feel that they're so empty, so dry, so insecure, so fearful. Their life is still so messed up. और तब भी वो लोग कहेंगे कि जो चीज मैंने हासिल किया उसके बाद भी मुझे खालीपन महसूस हो रहा है, मुझे सूखापन महसूस कर रहा है और मैं अपने जीवन में अभी भी असमंजस में हूँ। I want you to think about what are you after in your life? और जरा आप सोचिए इसके बारे में कि आप आपके जीवन में किस चीज के पीछे दौड़ रहे There हैं। is a person in the Bible who accomplished great things in his life. और बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसने महान चीजों को अपने जीवन में हासिल किया Right, he was born right from his birth. He was born into a great family. और उसके जन्म से ही वो एक महान परिवार में उसकी पैदाइश He हुई। went to the best of the universities of those days. और उस समय के जो महान विद्यालय थे वहां पे वो पढ़ा He got to a position of authority in those days. It was called as Sanhedrin, a member of Sanhedrin. और उस समय के जो सनहेड्रिन होते थे वहां की सभासद उसे मिली He had a Roman citizenship. और उसको रोमियो के सिटीजनशिप मिला था। It's as if you're having which is the top passport of these days: Japan, US, UK. He had the passport of those days, the best passport of those days. और इस समय जैसे हम देखते हैं कि कौन से देश का जो पासपोर्ट है वो काफी महत्व रखता है, जैसे जापान, यूएस या किसी और देश का, तो उस समय का जो रोमी सरकार का जो राज्य में वो था वहां का उसको सदस्य मिला था। Those of you who know travel a lot, you know when you put a blue passport how they see you, when they put a red passport how they see you. और जितने लोग आप में से सफर करके या घूमते हैं आपको पता होगा कि अगर आप नीला पासपोर्ट दिखाएंगे तो आपको किस तरह से देखते हैं, और अगर आप लाल पासपोर्ट दिखाएंगे तो वो किस तरह से आपसे So व्यवहार he करते हैं। had it everything in his life. और उसके जीवन में सब चीज उसने हासिल किया था।
One day he met Jesus. एक दिन वो यीशु से मिलता है He accomplished great things in his life in spiritual sense also. और उसने आत्मिक जीवन में भी काफी महान चीजों को But हासिल किया। looking back at all his great accomplishments, लेकिन जब वो पीछे देखता है अपने जीवन के सब चीजों को if जो you हासिल read किया है, Philippians chapter 3 few verses in this chapter, I don't want to go there. और फिलिप्पियों की पत्री इसका 3रा अध्याय अगर हम उसमें देखेंगे तो वहां पे वो इस प्रकार कहता है, He says, I consider everything that I accomplished as trash, rubbish in comparison to knowing Jesus Christ. और वो इस प्रकार से कहता है कि जितने भी चीजें मैंने जो हासिल किया है उसे मैं कूड़ा कचरे के समान मानता हूँ और केवल यीशु मसीह को महत्व देता हूँ। Have you arrived at that kind of realization in your life? क्या आप इस प्रकार के निर्णय पर या निश्चय पर आप पहुंच चुके हैं? Or you feel the worldly pursuits and the worldly things are more valuable and spiritual things sadly looks like trash to you? क्या आपको लगता है कि जो संसार की चीजें हासिल करना वो काफी मायने रखता है और जो आत्मिक चीजें है वो आपको कूड़ा कचरा के समान लग रही है? In this season, I want to encourage all of you to know Jesus Christ in a deeper way. और इस समय में मैं चाहता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह को और भी गहराई से हम जाने। How many of you think that you know Jesus? आप में से कितने लोगों को पता है, जब आप कहते हैं कि हम यीशु मसीह को अच्छे से जानते हैं, How much do you know him? कितना आप उसे जानते हो? Same person, Apostle Paul, who wrote 2/3 of the New Testament. At the end of his life, after all the great revelations he received, his prayer was still, Lord, that I may know you. और पौल जिसने 2/3 से ज्यादा नए नियम को लिखा है, वो पौलुस कहता है कि हे प्रभु, उसके जीवन के अंत में, कि प्रभु यीशु मैं तुझे और भी अधिक जानना चाहता हूँ। If anybody feels that you already know Christ, I feel sad for you. और अगर कोई इस प्रकार से सोच रहा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानता हूँ, तो मुझे आपको लिए दुख हो रहा है। We are on a journey. और हम एक यात्रा में हैं। The greatest pursuit is about knowing Jesus. और सबसे महान जो कार्य और जो लक्ष्य हमारा होना He चाहिए is वो the यीशु मसीह को most खोजना। amazing person that you will ever find on this universe. और इस पूरे भूमंडल पर या इस पूरे यूनिवर्स में सबसे महान व्यक्ति जो आपको मिलेगा वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। When you know Jesus, I believe two things will happen in our life. और जब यीशु मसीह को आप जानोगे तो 2 चीज आपके जीवन में होगी। If you really know Jesus, two things must happen in your life. और अगर आप सच्चे से यीशु मसीह को जानते हैं तो 2 चीज जरूर आपके जीवन में होगी। One, you will love him more and more better than the previous day. और एक है कि आप उससे अधिक और अधिक प्रेम करेंगे, कल से लेके आज आप उससे अधिक प्रेम करेंगे। May I ask you, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, how is your love for Jesus today? Is it better than yesterday or is it less than yesterday? आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह के लिए कैसा है? क्या वो कल से बेहतर आज है या उससे कम है? How much do you love Jesus? आप कितना यीशु से प्रेम करते हो? If you really know how great Jesus is, अगर आप सही में जानते हो कि प्रभु यीशु मसीह कितना महान है how wonderful Jesus is, और वो कितना अद्भुत है how gracious Jesus और वो is, कितना अनुग्रहकारी है how compassionate Jesus is, और वो कितना दयालु है how powerful Jesus is, और वो कितना सामर्थी है, nothing else can captivate us. और उसके तुलना में कोई भी और चीज हमको उसमें ध्यान केंद्रित There नहीं कर is सकती। something else that happens when we know Jesus more. और दूसरी एक और चीज होती है, जब हम यीशु को और अधिक से जानते हैं, We will fear him. हम उसका भय मानेंगे। We will not only love him, हम केवल उससे प्रेम नहीं we करेंगे will also fear him. लेकिन हम उसका भय भी मानेंगे, Because he is the creator of the entire universe. क्योंकि उसने सारी सृष्टि का निर्माण किया He है is the judge of the whole universe. और वो एक जज के समान है पूरी He is an यूनिवर्स का। all-consuming fire. और वो एक ऐसी धधकती हुई आग है जो आपको कंज्यूम कर लेगी। Unfortunately or fortunately today in this world we hear a lot about love of God and the grace of God these days. और इन दिनों में हम लगातार प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और दया के बारे में सुनते हैं। Every reel you scroll on your social media, it's more about love of God, grace of God, mercy of God. Praise God for those things. और सोशल मीडिया पे अगर आप कोई भी रील देख रहे हैं तो हम उस पे हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और We want दया to के बारे hear, में we बताते want to हैं see and hear more of those things. और हम लगातार उन चीजों को सुनना चाहते हैं। How much of the content you get to see about the fear of God? और कितनी चीजें आप से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के भय के बारे में। Even if it comes, we may not want to hear it. We want to scroll it quickly. और अगर वो आती भी होंगी तो आप उसको सुनना नहीं चाहेंगे, आप उससे तुरंत बाहर निकलना पड़ेगा। Who are the people whom you are following on your social media pages? आपके सोशल मीडिया पेज पे आप किन लोगों के पीछे आप चल रहे हो? Or you feel are always following only people who talk about good things and great things and positive things, motivational things, inspirational things, or are you following people who speak truth? क्या आप केवल उन्हीं लोगों के पीछे चल रहे हैं जो सकारात्मक चीजें बोलती है, जो आपको उत्साहित करती है, प्रोत्साहन देते हैं,
या आप उस सच्चाई के पीछे आप चल रहे हो। Love of God is good, और प्रभु का जो प्रेम है वो भला है, but I'm afraid we are losing the fear of God in our generation. लेकिन मुझे ये डर लग रहा है कि हमारे इस युग में हम प्रभु के भय को हम भूल रहे हैं। In 1980s, there was a famous US televangelist by the name Jim Baker. और 1980 के दशक में जिम ब्रेकर नाम का एक टेली इवेंजलिस्ट होता था। In fact, he was the one who popularized the ministry through television. और उसने जो है टेलीविजन के द्वारा जो सेवकाई है उसको स्थापित किया। His ministry was called, his TV show was called Praise the Lord. और उसका टीवी शो का जो नाम था प्रेज द लॉर्ड। Millions of people were subscribing to his channel, and many people used to get saved through his ministry. और लाखों लोग उसके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उसकी जो सेवकाई थे उससे बचाए गए। He attained success in a very short span of time, and everybody knew his name in US. और यूएस में उसने कम से कम समय में काफी महान चीजों को हासिल किया और हर कोई उसको जानता था। And soon something tragic happened in his life. और तुरंत ही उसके जीवन में एक दुर्घटना हुई। He was caught in sexual and financial scandals. और वो लैंगिक संबंध में और जो सांसारिक फाइनेंस के साथ में वो उसमें धोखे में पाया गया। His trial in the US court was telecasted live on television every day on CNN channel. और CNN चैनल पे उसको जो लाइव टेलीकास्ट किया गया है कि किस प्रकार से उसने इस सब कार्य को किया। Now you can imagine how famous that person was. और आपको पता चलेगा कि वो कितना वो फेमस वो व्यक्ति He था। was convicted, guilty, and sentenced to jail for 20 plus years. और उसको दोषी ऐसा घोषित किया गया और 20 साल की उसको सजा हुई। In the prison, he reflected on his life. और जब वो बंदी गृह में था तब उसने अपने जीवन के बारे में सोचा। He read about a book on the fear of God by another pastor by name Pastor John Beaver. Some of you might have heard about him. He's still ministering. और जॉन बीवर इस पास्टर के द्वारा एक पुस्तक जो लिखी थी परमेश्वर के भय के बारे में उसने उसे पढ़ा। After reading that book, he was really convicted. His relationship with God was reconciled, and he wanted to meet this person. और जब उसने वो पुस्तक को पढ़ा तो उसका जो प्रभु के साथ में संबंध था वो पुनः स्थापित हुआ और वो इस जॉन बीवर से वो मिलना चाहता था। Growing up for John Beaver, he always wanted to meet Jim Baker. He didn't thought that he would be meeting me in the prison, but he had a desire to meet him as well. और जॉन बीवर की इच्छा थी जब वो बढ़ रहा था कि भाई मैं एक दिन जाके जॉन बेकर से कभी मिलूंगा, लेकिन ये नहीं जानता था कि एक बंदी गृह में उससे मिलना पड़े। So agreed. John Beaver goes to Jim Baker. What a place for two pastors to meet in a prison in US. और देखिए एक ऐसा संयोग की बात हुई कि वो जो दो पासवान थे एक बंदी गृह में एक दूसरे से मिल रहे थे, जिम बेकर और जॉन बीवर। As soon as Jim Baker meets John Beaver, is so excited, embraces him, hugs him, I was waiting to meet you. I have so much to talk to you, but I've got only 90 minutes. और जिम बेकर जैसे ही जॉन बीवर को देखता है वो तुरंत उससे कहता है उत्साहित होके कि मैं काफी सारी बात आपसे कहना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास में केवल 90 मिनट है आपसे बात करने के लिए। The first thing Jim Baker says, John, I don't see prison as a judgment of God, but I see it as a mercy of God. और जिम बेकर जॉन बीवर से कहता है कि ये जो बंदीवास है जो मैं देख रहा हूँ ये एक पनिशमेंट नहीं है लेकिन एक परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में है। The reason why he said that was, he told him that if I had continued to go in the direction that I was going, I might have ended my life in hell in the lake of fire. But I thank God, God put me into this place to look back to him and get my relationship right with God. और उसने इसलिए इसे कहा क्योंकि अगर मैं इसी प्रकार से मेरे जीवन को व्यतीत करता जिम बेकर, तो वो कहता है कि हो सकता है कि मैं नर्क में चला जाता, लेकिन प्रभु ने मुझे जो सजा दी ये सजा नहीं है लेकिन मुझ पर अनुग्रह किया ताकि मैं उस पाप से छूट के प्रभु के पास में वापस आ सकूं। After a while, John Beaver asked Jim Baker, tell me, how did all this happen? और जॉन बीवर जिम बेकर से पूछता है कि भाई मुझे बताइए कि ऐसा आपके जीवन में कैसे हुआ? When did you actually, at what moment exactly you fell out of the love of God? और वो कौन सा मौका था या क्षण था जब आप प्रभु के प्रेम से आप दूर हो गए? You'll be surprised at what response he received. और आप अचंभित हो गए कि जो उत्तर जिम बेकर ने दिया उसको सुन के। Jim Baker tells John Beaver, और जिम बेकर जॉन बीवर से कहता है, I never
fell out of the love of God, और मैं प्रभु के प्रेम से कभी भी दूर नहीं हुआ, but I fell out of the fear of God. लेकिन परमेश्वर के भय से मैं दूर हो गया था। It is possible to love God and do all sorts of things in life, और हाँ, हो सकता है कि हम प्रभु से प्रेम करें और उसके साथ में और भी सारी चीजें करते रहे, but it's not possible to fear God and live the way we want to live. और लेकिन जब आप प्रभु का भय मानते हो तब उसके साथ में और बाकी सारी चीजें आप नहीं So in करोगे। this season, as we look to Jesus, और इस समय में जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते our हैं, prayer and desire that we'll love Him more. और मेरी दिल से इच्छा है कि हम अधिक उससे प्रेम करेंगे, More importantly, we'll also learn to fear Him, और उससे भी महत्वपूर्ण है कि हम उसका भय मानेंगे to honor Him, और उसको हम आदर देंगे to reverence Him. और उसको हम रेफरेंस देंगे। Who did Jesus say He was? और यीशु ने क्या कहा कि मैं कौन हूँ? Did Jesus ever say, I am God? क्या यीशु ने कभी कहा कि मैं प्रभु हूँ? That's what I want to look at. और वही मैं आपसे बात करना चाहता Gospel हूँ। of John, chapter 6, verse 22. और यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 6वां अध्याय और 22वां वचन। I just feel like stopping the clock there right now. और मैं चाहता हूँ कि वो घड़ी वही बंद हो जाए इस समय, I got 10 minutes. और मेरे पास में केवल 10 मिनट बचे हैं। In the 5 minutes He will take. Verse 622. और 22वां वचन हम देखेंगे। I had to rush. I'll not be able to tell fully. On the next day, the crowd that remained on the other side of the sea saw that there had been only one boat there, and that Jesus had not entered the boat with his disciples, but that his disciples had gone away alone. Okay, just read that. Please go and read this chapter at home. आप घर जाके इस अध्याय को पढ़ सकते हैं, यूहन्ना इसका 6वां अध्याय 22 से आगे। Most of the events that are mentioned in the Bible are not chronological. और कई जो वाक्य जो लिखा है बाइबल में, उसको एक के बाद में आप एक उसको नहीं पढ़ सकते। And many things are chronological. और कई सारे चीजें हैं जो कि उसका एक क्रमण में वो नहीं लिखा गया है। This chapter begins with Jesus feeding 5,000 men with 5 loaves and 2 fish, the famous miracle. और ये जो अध्याय की जो शुरुआत होती है उसमें 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा प्रभु ने 5,000 लोगों को जो खाना किया है, This was the उसके miracle हिसाब that से चालू Anna होता was referring while she was leading worship. This miracle is recorded in all 4 Gospels. है। और ये चमत्कार पूरे 4 ही जो नए नियम में उसमें लिखे गए हैं। In fact, this is the only miracle that is recorded in all 4 Gospels. और जो 4 गॉस्पेल में इन सबको लिखा गया है, There is a great significance to it. और इसका काफी महत्व मायने रखता है। After that miracle, Jesus sends the people away, and he sends the disciples to get. He made them to get into the boat and go to the other side ahead of him. और ये चमत्कार के बाद में यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहता है कि तुम नाव में चढ़ के दूसरी ओर जाओ, मेरे आगे तुम आगे जाओ। On the way, they were faced with a life-threatening storm, और उस मार्ग पे जब वो जाते हैं तो एक काफी बड़ा तूफान आता है, and Jesus walks on the sea, और यीशु उस नदी पे चल के आता है, calms the storm, और वो तूफान को शांत करता है, they reaches the other shore. और दूसरे किनारे वो पार से होते The हैं। multitudes who had ate the bread and the fish the other day, और जो भीड़ जो थी जिन्होंने मछली और रोटी को खाया था पिछले दिन, next day they're seeking after Jesus. और दूसरे दिन भी वो प्रभु यीशु के खोज में लगे हैं। Why are they seeking Jesus? और वो यीशु के लिए क्यों खोज रहे हैं? Obviously, they're hungry the next day. और क्योंकि उनको दूसरे दिन जरूर भूख लगी होगी, Probably they thought that was the best bread and fish they had ever had in their life. और वो सबसे अच्छी रोटी और मछली उन्होंने खाई होगी इनके जीवन And में। all the multitudes come to Jesus to find Jesus. When did you come here? और जो भीड़ आती है वो यीशु से पूछती है कि यीशु मसीह आप कब आए, यहाँ पे आए? Jesus knew the hearts of the people. और यीशु उनके हृदय को जानता था, He was never impressed by the multitudes. और वो भीड़ से कभी भी वो प्रभावित नहीं हुआ, He knew why they were seeking after him. और उसको पता था कि ये भीड़ क्यों उसके पीछे चल रही है। Why are you all seeking Jesus today? आज शाम को आप सब यीशु मसीह को क्यों खोज रहे हो? Why are you seeking? आप क्यों उसकी खोज में लगे हो? Jesus knows why you are seeking him. और यीशु जानता है कि आप उसकी खोज में क्यों लगे हो। I hope you are not seeking after bread and fish. और मेरी ये आशा है और ये जानता हूँ कि आप मछली या रोटी के लिए उसके पीछे नहीं जा In the रहे। sense, I hope you are not seeking Jesus only for natural blessings. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल सांसारिक चीजें हासिल करने के लिए I आप उसके hope you पीछे are नहीं चल not रहे। just seeking Jesus for some miracles, some blessings, some healing, some job, some promotion, some issues, some battle in life. और कोई चिन्ह, चमत्कार या चंगाई या और मिराकल्स और आपके जीवन में अच्छी चीजें हासिल करने के लिए आप उसके पीछे केवल नहीं पीछे Jesus चल does रहे हो। all those things. I'm not denying that.
I will encourage you to believe for those things. और यीशु मसीह वो सब चीजें देगा, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, आप But- उसके लिए मांग सकते हैं। But there is far more important than the earthly and the natural blessings. और इससे भी कई बढ़कर जो संसारिक आशीष है, उससे भी बढ़कर एक महत्व की चीज है, That's the spiritual blessings. और जो कि आत्मिक आशीष है, That's the eternal life. और अनंत जीवन जो है, That's the relationship with God. और प्रभु यीशु मसीह के साथ जो In संबंध है। the discourse in verse 35, Jesus tells who he is. और 35वें वचन में जब वो बात कर रहा है तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं कौन हूँ। He says, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. और उसने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास रखता है वो कभी प्यासा ना होगा। Jesus says, I am the bread of life. और यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूँ जीवन की रोटी। In English, it might not make any sense. और हो सकता है कि इंग्लिश या हिंदी में आपको समझ में ना आए, But the Greek word that is used there for I am is ego eimi. और जो यूनानी शब्द वहां पे यूज किया गया है वो एगो एमी है। Of course, we know that Jesus did not speak Greek. और यीशु मसीह यूनानी भाषा नहीं बोलते थे, Many scholars believe that he spoke Aramaic. और वो अरामिक ये भाषा बोलते थे। But John captures the words that he spoke in Aramaic into Greek in a very to put it before us what Jesus claimed himself to be. लेकिन यूहन्ना जो इस किताब का लिखने वाला है, वो यूनानी शब्द में वो यीशु मसीह ने जो कहा एगो एमी, उसके बारे में वो यहाँ कहता है। I want to think about this word ego eimi. और एगो एमी शब्द के बारे में आप सोचिए। In general popular public usage of Greek, this was a very unusual word to use. और जब यूनानी भाषा का अगर हम इस्तेमाल करेंगे साधारण रीति से, तो ये शब्द का वहां पे इस्तेमाल ज्यादा नहीं होता। Ego means I, और एगो का मतलब है कि मैं, eimi means am. और एमी का मतलब कि मैं हूँ। But in general public usage, they only use one of those words. और लेकिन जब आप लोगों से जब बात करते हैं तो उस दो शब्दों में से केवल एक ही शब्द का इस्तेमाल किया For जाएगा। instance, if I have to say I am Manohar, और अगर मुझे कहना है कि मैं मनोहर हूँ, they either would say ego Manohar or Amy Manohar. और वो इस प्रकार से उसका इस्तेमाल करेंगे, एगो मनोहर या एमी They मनोहर। would never say ego Amy Manohar. और वो इस प्रकार से नहीं कहेंगे एगो एमी मनोहर। It would sound to the hearers as if I am Manohar. और मैं हूँ मनोहर, ऐसा वो नहीं बोलेंगे। But why did Jesus use that ego Amy? लेकिन यीशु मसीह ने ये शब्द एगो एमी क्यों इस्तेमाल किया? Because that was a word that was in the Septuagint, that was translated, that's the translation of Hebrew of the Old Testament, where God revealed himself to Moses. और जब वो शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया है, जब हम पुराने नियम में देखेंगे, जब परमेश्वर ने मूसा को अपना नाम दिखाया या दर्शाया था, उस समय इसका इस्तेमाल किया I गया want था। us all to remember about this great instance that happened in the book of Exodus chapter 3. और निर्गमन की पुस्तक उसके 3रे अध्याय में जो महान जो प्रभु God जो मिले मूसा से, encounters Moses to the burning bush. और जो जलते हुए झाड़ के करीब मूसा से प्रभु मिलते हैं। God is telling Moses to go and set the Israelites free from the power of Pharaoh. और वो मूसा से कहते हैं कि तू जा और फिरौन की गुलामी से इसराइलियों को छुड़ा के लेके आ। Moses, in his conversation, God is trying to escape from that, giving a lot of excuses, asking a lot of questions. और वो जब परमेश्वर से बात कर रहा है तो वो काफी सारे उससे बात करता है और कई सारे उसको एक्सक्यूज दे रहा है कि मैं नहीं जा सकता। One of the questions that Moses asks God is, और एक प्रश्न जो मूसा परमेश्वर से पूछता वो ये है, all right, God, I'll go to the Israelites. हाँ प्रभु ठीक है, मैं इसराइल के पास चले जाऊंगा। I'll tell them that God of heaven has come and met me and asked me to come here. और स्वर्ग का प्रभु आया मुझसे, उसने बात किया और मुझसे कहा। But what if when they ask me what is his name, what should I tell them? और लेकिन जब वो व्यक्ति मुझसे पूछेंगे कि क्या उसका नाम क्या था, तो मैं क्या For कहूंगा? the first time ever, God is revealing his one and only name. और पहली बार वहां पे परमेश्वर अपना नाम बताता है। All the other descriptions are only titles and not the names of God. और उसके अलावा जितने भी डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं वो केवल उसके टाइटल्स है। Whether it's Elohim or El Roi, Jehovah Nissi, Jehovah Shalom or whatever, they're all either names given by people unto God based on their experience or something that described about God's nature but never God's name. और जो इतने भी शब्द हम देखते हैं कि एल रोही, एलोहिम, यहोवा निसी, यहोवा यीरे, वो नाम जो है वो व्यक्ति ने दिए उस परिस्थिति में जिससे वो गुजर रहे थे, और परमेश्वर का नाम उन्होंने दिया। First time God is revealing his name. He said, I am
that I am. और पहली बार यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर अपना नाम मूसा को बता रहा है और कहता है कि मैं हूँ जो हूँ। In Hebrew, Ehe, Asher, Ehe. और हिब्रू में इस प्रकार से है एहे एशर एहे। And when it is the first person, it is Ehe, and when it's third person, it is either Yahweh or Jehovah. और जब पहला व्यक्ति है तब वो एहे होता है, और अगर तीसरे व्यक्ति से कहना है तो यावे या जहोवा है। Yahweh is the name of God. यावे ये प्रभु का नाम है। And the Greek translation for that is ego eimi. और यूनानी शब्द में उसका जो ट्रांसलेशन है वो है एगो एमी। And when Jesus stood on that day and was speaking to the people, ego eimi, they knew whom he was identifying himself to be. और यीशु मसीह उस दिन जब खड़े हुए और लोगों से उन्होंने कहा कि एगो एमी, तब लोग जान गए कि वो प्रभु है। Jesus claimed ego eimi more than 7 times by using metaphorically in this book of John. और 7 बार से भी अधिक, 7 बार हम देखते हैं कि यूहन्ना के रचित सुसमाचार में प्रभु ने कहा कि मैं हूँ और एगो And there are एमी। many other times he directly said, I am. और कई बार उसने सीधा कहा कि मैं प्रभु हूँ। Remember the instance once when he said, Jesus, before Abraham was, I am. और आपको पता होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मूसा से पहले मैं हूँ, Jesus not making grammatical mistake there. और वहां पे कोई व्याकरण का दुरुपयोग नहीं कर रहा है, He is, I am. He was saying, he did not say I was, but I am. लेकिन वो कहता है कि मैं था नहीं लेकिन मैं हूँ। In another instance, when he was in the Garden of Gethsemane, and the Roman soldiers came to catch him, और गत्सेमनी गार्डन में जब रोमी जो सैनिक उसको आके पकड़ते हैं, they did not know who Jesus was. और उनको पता नहीं था कि यीशु मसीह कौन है। Then when Jesus approached them and asked them, whom are you seeking after? और यीशु उनके पास जाके कहता है कि तुम किसकी खोज में लगे हो? They said, we are seeking after Jesus. और वो कहते हैं कि हम यीशु को खोज रहे हैं। What did Jesus say? और यीशु क्या कहता है? I am. आई एम, मैं हूँ। The moment they said, they step back, they fall back. और जैसे यीशु कहता है कि मैं हूँ, तो वो तुरंत वो सब गिर जाते हैं। Again, there's a display of divine power of God there. और वहां पे प्रभु यीशु मसीह की जो अलौकिक शक्ति को वहां पे हम देखने Now, the मिलता very है। fact that Jesus was crucified because of the blasphemy, because he claimed himself to be God. So, Jesus unequivocally, without any ambiguity, he declared that he was God. और इसीलिए उसको क्रूस पर चढ़ा गया है, क्योंकि उसने कहा कि मैं प्रभु हूँ, और इसी वजह से वो क्रूस पर चढ़ाया गया था। What does Yahweh mean? और याहवे इसका मतलब क्या है? The self-existent, self-sufficient God is not contingent upon anything or anyone else. और वो सर्वव्यापी और वो सर्व उपस्थित ऐसा परमेश्वर है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। He is an eternal God who always is. He has no beginning, he has no end. He is always there. और वो अनंत कालिक का परमेश्वर है, वो आदि से लेके अंत तक के वहां पे है। He is immutable, is an unchanging God. और उसको कोई चीज रोक नहीं सकती, वो अबदलने वाला ऐसा परमेश्वर है। So Jesus is not another human being who walked on the face of the earth, but God himself who have visited mankind in flesh. और प्रभु यीशु मसीह केवल एक दूसरा व्यक्ति नहीं था जिसे परमेश्वर ने भेजा, लेकिन वो स्वयं परमेश्वर था जो धरती पे आया हमारे लिए। And in this context he said, I am the bread of life. और यहाँ पे वो कहता है कि मैं हूँ जीवन की रोटी। The bread that you eat, you will again get hunger and one day will perish. और जो रोटी आप खाते हैं उससे आपको और भी भूख लगेगी और वो खत्म हो I जाएगी। really wish I could read this entire chapter, but I'll ask you to go home and read. और मैं काश मैं पूरा अध्याय में यहाँ पे पढ़ सकता था, लेकिन आप घर जाके इसे अच्छे से पढ़िए। It gives a contrast between manna that God showered for the people in the wilderness for Israelites. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मन्ना जो इसराइलियों के लिए मरुभूमि में दिया गया था, He contrasts it between the food that perishes and food that endures for eternal life. और उसके विरुद्ध में किस प्रकार से अनंत का जीवन जो उसने दिया है उसके बारे में लिखा गया है। While introducing himself, I am the bread of life, Jesus is inviting for the people to come to a relationship with him. और जब वो कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ, तो वो लोगों को आमंत्रित कर रहा है कि वो उसके पास में वो आ सके। What does bread mean? और रोटी का मतलब क्या होता है? That is what gives us life, the और- physical body. और वो हमारे शारीरिक जीवन के लिए वो जीवन के समान है। Jesus has come to give himself unto us that we may have spiritual life. और यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो स्वयं को हमारे लिए दे सके, ताकि हम आत्मिक जीवन को हासिल We करने might पाए। not be hungry for bread today, और हो सकता है कि आपको रोटी की भूख ना हो आज, but we might be hungry for several other things. लेकिन हो सकता है कि हमें और भी कई चीजों की भूख हो। We might be hungry for love. और प्रेम की भूख हो सकती है, We might be hungry
hungry for significance. और किसी चीज महत्व की हमें भूख हो सकती We है। might be hungry for to find meaning and purpose in life. हमारे जीवन का कुछ उद्देश्य हो, उसकी हम भूख में लगे हो। We might be hungry for several other things in life. और भी कई सारी चीजों की हमें जीवन में भूख हो सकती है। If you try to find these things anywhere apart from God, you are setting yourself up for disappointment. अगर आप उसकी खोज परमेश्वर के अलावा किसी और चीज में देख रहे हो तो आप निराशित होगे। Many of the people in this world are seeking after love, joy, peace in wrong places. और कई जो संसार के लोग हैं वो प्रेम, आनंद और इसकी खोज कई और जगह ढूंढ रहे हैं। You think you can find them in people? क्या, No. क्या आप लोगों में उसको पा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। Cannot, no person in this world can ever satisfy you. कोई भी व्यक्ति इस जीवन का उस प्रकार से आपको संतुष्ट नहीं कर सकता है। Not in your spouse, आपके पति या पत्नी नहीं कर सकते, not your children, आपके बच्चे नहीं कर सकते, not your parents. आपके माता पिता नहीं कर सकते। How great the relationship could be, और कितना भी अच्छा आपका संबंध क्यों our ना हो, ultimate satisfaction and fulfillment can only be met in Christ Jesus. और जो हमारा अनंत काल का जो सेटिस्फैक्शन है वो हम केवल प्रभु यीशु मसीह में पा सकते हैं। That's what Jesus inviting us. Come, eat this bread, eat me, receive me, and live. और वही प्रभु यीशु मसीह हमको आमंत्रित कह रहे हैं कि आओ और मुझसे खाओ और आप जीवन को पाएंगे। Jesus is inviting us this evening यीशु इस शाम के समय हमको बुला रहे हैं to find our strength in Him, ताकि हम उसके द्वारा अपनी सामर्थ को पा सके, find our life in Him, हमारा जीवन उसमें हम पा सके, find our hope in Him. हमारी आशा उसमें हम पा सके। And again, this is not a one-time event. और ये केवल एक बात का ही कार्य नहीं है। Just like you eat food every day for your physical body, जैसे हम हमारे शारीरिक जीवन के लिए हम खाना रोज खाते हैं, you need to eat the word of life every day for a spiritual person to be alive. और उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में हमें जीवित रहने के लिए प्रभु के वचन को हर समय ग्रहण करना जरूरी है। Eat it, और उसे हम खाइए, drink of it, उसमें से हम पिए receive life. और हम जीवन को प्राप्त करेंगे। If not, we will grow weak in our spiritual life. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम हमारे आत्मिक जीवन में हम कमजोर हो जाएंगे। I cannot emphasize this importance more of how important to eat the bread of life each day in our life. और मैं इसका महत्व कहीं और बता नहीं सकता कि कितना ये महत्व रखता है कि हम प्रभु के जीवन की रोटी को हर दिन खाएं। So Jesus is inviting us, come, I am the bread of life. और यीशु हमको आमंत्रित कर रहा और कहता है कि इस जीवन की रोटी को हम So खाइए। we all rise in God's presence.